Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing good and fine. I welcome you all in our next session of INMO Flashback series, guys. In this series, we are solving previous year INMO questions, and we started with the year 2000, right? And so far, we have completely solved till 2013. So 14 years के 2000 से लेके 2013 तक के 14 years के papers completely solved हैं. You can find them on posted on the channel. And currently, we are going through INMO 2014. और उसके भी हम first 3 questions कर चुके हैं. Okay, and so today we are going to solve the fourth question of INMO 2014, right? So guys, the today's question is based on a bit of algebra, right? Algebra के ऊपर based है. तो देखते हैं उस पे आते हैं. थोड़ा गेम थ्योरी भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, आप सोच सकते हो. लॉजिकल, बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट? सो बिफोर बिगिनिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज लोहित जिंदल. आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT Bombay and I have been teaching mathematics since past 9+ years, since graduation, and teaching for various competition exams like IIT JEE, KVPY and Math Olympiads, right? तो guys, आज का जो क्वेश्चन as I said is based on algebra, ठीक है, and some game theory a bit. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक काम करते हैं, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि ये गेम में ये भी, इस क्वेश्चन का मेन एक एस्पेक्ट ये है कि इफ यू रीड द अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली, प्रॉपरली, यू विल हाफ ऑफ द जॉब विल बी डन बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन एज सच इजी है, राइट? लेट अस रीड द क्वेश्चन गाइज. सो व्हाट डज इट से? Okay, so one thing before proceeding guys, I'll request you guys to please pause the video here and try this question by yourself first. ठीक है ना, पहले खुद से try करो, because guys you will get a very good insight into it after watching the solution only if you have already attempted the question. अगर attempt नहीं करोगे ना, सीधा solution देखोगे, the concepts or the logic will not retain right in your mind. ठीक है ना? तो best benefit लेना है अगर इस question को का वीडियो देखने का, it will be better if you would attempt the question by yourself first. Okay, all right, I hope guys सबने ट्राई कर लिया अब इस क्वेश्चन को, ठीक है? So let us discuss this question. Guys, एक polynomial लिखा हुआ है. Okay, what they are saying is there's a polynomial written on the board like this, that is x square plus x plus 2014, right? ठीक है, let's say that is f of x. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं. Let us say this is f of x. ठीक है. Now what is happening is Calvin and Hobbes take turns alternatively, starting with Calvin. ठीक है, Calvin start कर रहा है in the following game. During his turn, Calvin should either increase or decrease the coefficient of x by 1. यहाँ पे जो x का coefficient है, okay, the coefficient of x is taken care of by Calvin. Calvin will change the coefficient of x and Hobbes can change the constant term by 1. This is what is given to us. देखो, उनके पास सिंपल ऑप्शन है, either they can increase the coefficient by 1 or decrease it by 1. Same for Hobbes, either he can increase the constant term by 1 or decrease it by 1. ठीक है ना, constant coefficient by 1. दोनों बार +1 या -1 ही वो कर सकते हैं, right? Now it says Calvin wins if at any point of time the polynomial on the blackboard at that instant has integer roots. मतलब अगर कुछ भी चेंजेस करते हुए कभी भी इस क्वाड्रेटिक के इंटीजर रूट्स अगर पॉसिबल हो गए, ठीक है, देखो, अगर एक इंटीजर होगा दूसरा भी इंटीजर होगा, दैट इज क्लियर एनीवेज, बिकॉज सम ऑफ रूट्स विल ऑलवेज बी सम इंटीजर, फ्रैक्शन तो है नहीं, है ना? सो दैट इज इफ एट एनी पॉइंट और एनी इंस्टेंट और एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द गेम, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स, द गेम इज ओवर, कैल्विन विंस द गेम. अगर इंटीजर रूट बन गए, कैल्विन जीत गया. अगर नहीं बन पा रहे तो चलता रहेगा गेम. तो काइंड ऑफ यू कैन से दैट हॉब्स विल नेवर विन, काइंड ऑफ, और यू कैन से Calvin, it can be so that कि Calvin को जीतने नहीं देगा वो Hobbes, if it might be the case, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा. But yes, the point is Calvin can win only if the quadratic has integer roots, right? That is the case. So now we have to prove that Calvin has a winning strategy. कि मतलब कुछ भी करके Calvin can make it so that Calvin can ensure that that the quadratic equation will have integer roots, right? This is what the question demands from us. So guys, let's see क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, right? As I said, this is f of x, x square plus x plus 2014. So let us understand guys, game will be starting with Calvin, right? Game Calvin के साथ start हो रहा है. I'll give you one idea कि पहले इसको analyze कैसे करना है, right? So guys, first of all, if I just assume f of 2, you'll get to know कि मैं f of 2 के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ, because it is so that
कि कैल्विन अगर कोफिशिएंट को चेंज करेगा देन द चेंज इन द इक्वेशन विल बी ऑफ 2, क्योंकि वो सिर्फ x का कोफिशिएंट चेंज कर सकता है एंड x को अगर आप 2 डालते हो तो इफेक्टिवली ही इज चेंजिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1 और +1 और -1, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल चेंज बाय 2 और -2, राइट। आई गिव यू एन आइडिया, मतलब अगर हम इसी पॉइंट पे इफ वी चेक f ऑफ 2, व्हाट इज दैट, 2 स्क्वायर +2 + 2014, right, this is 2020. So guys think about this. अब अगर कैल्विन इसका x का कोफिशिएंट 1 से इंक्रीज कर देगा and then if you check f of 2 then the value net value will be increased by 2 ना, because वो x का कोफिशिएंट है, x को आप 2 डालने वाले हो तो 2 into 1 हो रहा था, जो 1 को आपने 2 कर दिया, so the value increased by 2, it will become 2022. और he can either reduce it by 1, है ना, x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा लेट्स से फर्स्ट स्टेज पे, तो वो -2 हो जाएगा, तो 2018 पे ले आओगे वैल्यू, राइट, गॉट इट ना। सो व्हाट आई मीन टू से इज, मैं एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आफ्टर कैल्विन्स फर्स्ट मूव, ओके, आफ्टर कैल्विन्स फर्स्ट मूव व्हाट विल हैपन, f of 2 is equal to 2 square, let's say मैं आपको दो केसेस दिखाता हूं, if we increased it by 1 then 2 square plus 2 into 2 plus 2014 हो गया, right, that is 2022. So effectively he is able to increase the value by 2, right, या फिर अगर उसने डिक्रीज किया होता है x का कोफिशिएंट by 1, so then it will be written 2 square plus 0 into 2 plus 2014 which gives you 2018. तो आप देख रहे हो 2018 बन गया या 2022. So either he is increasing this value f of 2 by 2 और -2 कर रहा है, ठीक है ना, इसको f1 लिख देता हूँ rather than writing it as f of 2. So what I'm trying to say is कि फंक्शन की वैल्यू या तो 2 से वो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है. Just because I picked f of 2, that is why this is possible, right? But what can Hobbes change? Hobbes can change the function value of the polynomial by 1 only. Either he can increase it by 1 or he can decrease it by 1, right? That is the whole game. ठीक है, ये हो रहा है. So let us understand guys, very interesting thing. अभी 2020 है, let's say I want to create it so that कि कैल्विन ने सोच लिया भाई जीतने के लिए f of 2 की वैल्यू 0 बना देते हैं ना. If I am able to say that f of 2 will be 0, if Calvin is able to do such processes or such steps such that he is able to make f of 2 0, तो 2 उसका रूट हो गया क्वाड्रेटिक का, तो गेम जीत गया कैल्विन, राइट. अगर 2 इंटीजर है ना, अगर वो इंटीजर वैल्यू उसका रूट होगा क्वाड्रेटिक का, कैल्विन विंस द गेम, ठीक है. सो नाउ वी विल फोकस ऑन दिस थिंग दैट कैन कैल्विन इंश्योर कि f of 2 की वैल्यू 0 बना सकता है वो. Can he ensure that after certain steps that f of 2 he can make it to be 0? So for that what he should try is he should always do the value so that it will decrease. तो हर बार वो x का ऑप्शन subtract करेगा, because step after step जब आप f of 2 डालोगे, अगर आप decrease करना चाहते हो फंक्शन की वैल्यू f of 2 की वैल्यू, you see सेकेंड केस में हो रहा था when he reduced the coefficient of x by 1, अगली बार -1 और कर देगा तो 2016 हो जाएगा, right? So this is the whole concept, meaning see f of 2 is already an integer, so Calvin can ensure कि value कम होती रहे, है ना. Even if Hobbes try to increase it, he can increase it by 1, but Calvin can decrease it by then 2, ठीक है ना. मैं आपको लॉजिक बताता हूँ. Let us assume, okay, let us assume that fi of 2 is the value of the function after ith turn of Hobbes, ठीक है. आफ्टर ith turn of Hobbes, f of I of 2 is the value. कुछ वैल्यू होगी, यू कैन टेक द इनिशियल वैल्यू एज वेल. मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं. नाउ आफ्टर ith turn of Hobbes, ith टर्म Hobbes की हो गई है, एंड देन द वैल्यू इज f of I of 2, है ना. फंक्शन की कुछ पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू होगी. नाउ आफ्टर दिस व्हाट कैन हैपन, दैट सर्टेन पॉसिबिलिटीज. लेट्स से कैल्विन ने तो डिक्रीज ही करनी है वैल्यू. लेट्स से f of I of 2 इज सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोर्स, राइट. विल स्टार्टिंग विद 2020, जैसे कि इसके बाद 2018 कर दिया लेट्स से कैल्विन ने. इवन इफ 2022 हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. f of I of 2
is the value of the polynomial after ith turn of Hobbes. Now, what will happen? Let's say Kelvin decreases, Kelvin को तो 0 लेके आना है. He wants to make it 0. So what will Kelvin do? इसके बाद Kelvin will do -1, है ना, for the coefficient of x. So now what will be the function's value? Okay, वो तो -1 ही करेगा let's say. उससे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f of I of 2 -2 हो जाएगी. After this step, after Kelvin step, what is the next step? Now Hobbes की turn है, because it will give the value of f of I plus 2, right? Oh, sorry, f of I plus 1, because it is the I plus 1th turn of Hobbes. तो उसकी f of I plus 1th value of 2 की वैल्यू क्या होगी? Now see, function has already decreased by 2. ठीक है, जब Kelvin ने -1 कर दिया, the point is f of I of 2 was the value of the polynomial after ith turn of Hobbes. Now Kelvin is going to subtract it by -1. Again, I am emphasizing that this is a positive value, right? It is some positive value, positive integer greater than 3. ठीक है, greater than, rather greater than equal to 2 है ना. इनिशियल वैल्यू तो 2020 है ना, बिल्कुल इनिशियल पे, तो एकदम से नेगेटिव में तो जा नहीं पाओगे. आई एम सेइंग इट इज आफ्टर ith टर्न. लेट्स से देयर इज सम पॉजिटिव वैल्यू, किसी टर्म के बाद तो रहेगी, किसी टर्म के बाद. अब मैं पॉइंट सेट करता हूं. इवन यू कैन टेक द इनिशियल वैल्यू, यू कैन से आफ्टर द फर्स्ट टर्न ऑफ हॉब्स. ठीक है, अब देखो f of I plus 2 गाइस, केल्विन ने क्या किया था? -1 किया था. सो तो वैल्यू फंक्शन की -2 हो गई थी पॉलिनोमियल की. f of I of 2 से 2 कम हो गई थी. नाउ after that it is the turn of Hobbes. Either he'll increase the constant term by 1 or he will decrease the constant term by 1. So f of I plus 2 of 2 has two possibilities. Either it will be f of 2 minus 3 or f of 2 minus 1. मतलब आप लॉजिक समझ रहे हो क्या हो रहा है? Whatever happens, Kelvin can ensure कि फंक्शन की वैल्यू हॉब्स की टर्न के बाद या तो -3 होगी या फिर -1 होगी, बिकॉज ही हैज फिक्स्ड, उसने अपने लिए ठान लिया कि वो तो -1 ही करेगा हर बार, राइट? बिकॉज ही वांट्स टू मेक इट 0. फंक्शन की वैल्यू 0 तक लेके आनी है. इनिशियल वैल्यू इज आइदर 2020, है ना. कैल्विन की फर्स्ट मूव लेट से वो करेगा -2 करेगा तो 2018, -1 करेगा तो 2018 आएगा. he doesn't want to increase the value ना, because he wants to make it equal to 0. तो उसको तो डिक्रीज ही करना है. कैल्विन को जीतना है तो उसको इक्वल टू 0 क्रिएट करना है. सो he'll keep on subtracting coefficient of x by 1. ठीक है, तो उसने फर्स्ट टर्न में क्या किया? 2018 कर दिया. नाउ थिंक अबाउट इट. इसके बाद हॉब्स की टर्न है. वो क्या चाहता है कि 0 तक ना आए, बढ़ा के रखना चाहता है. he'll not want it to reduce to and come to 0, right? तो हॉब्स क्या करेगा? लेट्स से उसने 1 से बढ़ा दिया वैल्यू, 2019 हो गया. नाउ अगेन कैल्विन विल डिक्रीज बाय 1, तो फिर 2017 हो गया. सो बेसिकली द पॉइंट इज कैल्विन कैन इंश्योर कि नेट वैल्यू रिड्यूस ही होती जाएगी नो मैटर व्हाट हॉब्स डू. हॉब्स अगर -1 कर देगा तो ज्यादा बल्क कम हो जाएगी वैल्यू. अगर वो +1 करेगा इवन देन कैल्विन विल रिड्यूस इट बाय 1. नेट 1 से रिड्यूस कर ही देगा, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस. क्योंकि अगर देखो हॉब्स ने अगर -1 किया देन द वैल्यू नेट डिक्रीजेस बाय 3. द वैल्यू इज डिक्रीजिंग बाय नेट वैल्यू ऑफ 3. वेयरएज अगर वो +1 भी करता है तो भी -1 तो हो ही गया ना. यू कैन सी इट हियर. ठीक है ना. सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट. नाउ दे विल प्ले इट सो दैट इट कम्स टू 0. तो अब ये हमने समझ लिया कि कैल्विन उसको नीचे तो लेके आ ही जाएगा, वैल्यू उसकी कम करता रहेगा. नाउ व्हाट कैन हैपन सो दैट कैल्विन डज नॉट विन? व्हाट माइट हैपन, जो हमें ढूंढना है कि वो भी नहीं हो पाएगा. व्हाट माइट हैपन इज कमिंग नियर टू 0. इट माइट हैपन इन सम केस कि Hobbes is ensuring that the value is oscillating between the two values, but it's never becoming 0. ऐसा मे बी पॉसिबल होता ना, मे बी कि मान लो लेट्स से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट ट्रू इन दिस केस. ऐसा हो सकता है ना कि वैल्यू 1 पे आ गई, कैल्विन अब कैल्विन की टर्न है तो वो -2 करेगा तो -1 हो जाएगा. एंड लेट्स से हॉब्स वाज आल्सो एबल टू चेंज बाय 2, तो -1 से वो +2 कर देगा. सो वो ऑसिलेट करता रहता, तो वो कैल्विन को नहीं जीतने देगा. विल ट्राई टू प्रूव इट कि वो भी नहीं हो पाएगा, राइट? सो गाइज वी हैव अंडरस्टूड नाउ कि वैल्यू उस f of I of 2 की, मतलब f of 2 की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू ओवरऑल आफ्टर सर्टेन आइटरेशंस डिक्रीज करते रह सकते हैं वो, है ना. कैल्विन कैन इंश्योर इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, कम करता जाएगा, 0 की तरफ आता जाएगा. सो वी कैन से आफ्टर सर्टेन टर्म्स, आफ्टर सर्टेन टर्म्स, है ना, fm of 2 डिफाइन कर देते हैं. दैट fm of 2 कैन आइदर टेक द वैल्यू ऑफ 0
1 or 2, meaning after some mth turns of Hobbes, आफ्टर सम टाइम, मतलब बहुत बार ये टर्न्स चलती रहेंगी, नेट कैल्विन इंक्रीज करवाता जा रहा है वैल्यू, एफ ऑफ एम ऑफ 2 की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी या 2 हो जाएगी, राइट। मैं 3 क्यों नहीं ले रहा हूं केस, क्योंकि वहां पे देखो ना -1 -3 हो रहा है ना। अगर 3 आएगा तो उसके बाद उसका -3 या -1 करके 2 या 0 आ ही जाएगा, है ना। सो आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द केसेस विच वेयर एफ एम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि अगर 3 होगा देन आफ्टर वन मोर आइटरेशन, जो ये हमने ऊपर गेम किया, एक एक स्टेप दोनों करेंगे, उसके बाद 0 या 2 आ जाएगा। सो आई एम कंसिडरिंग दोज केसेस ऑलरेडी, ठीक है। तो हम ये समझ पा रहे हैं गाइस, आउट ऑफ 0 1 एंड 2 कोई एक केस तक तो हम ले ही आएंगे इसको, ठीक है। कोई एक केस तक हम रिड्यूस कर करके ले आए हॉब्स और कैल्विन। नाउ माइंड यू व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आफ्टर आई एम टर्म्स ऑफ हॉब्स। देखो, सो गाइस इफ इट ऑलरेडी मेकिंग 0, इट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। अगर 0 हो गया फिर तो कैल्विन विंस, है ना। अगर 0 आ ही गया ऑलरेडी देन कैल्विन ऑलरेडी विंस, तो ये केस हो गया। व्हाट इफ आफ्टर m टर्म्स f ऑफ m ऑफ 2 की वैल्यू 2 हो जाए, सॉरी 1 होगी। नाउ हाउ डू विल कैल्विन प्ले आउट हियर, ठीक है ना। एफ एम ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, करेक्ट। लेट अस सी व्हाट स्टेप्स विल कैल्विन टेक सो दैट ही इज एबल टू मेक इट 0। लेट अस सी द स्टेप्स। देखो, हॉब्स की टर्न के बाद वैल्यू 1 है ना। आफ्टर सम टर्न्स ऑफ हॉब्स द वैल्यू इज 1 ऑफ द फंक्शन। नाउ कैल्विन विल प्ले द टर्न, ओके। कैल्विन क्या कर सकता है, या तो -2 या +2, ठीक है। ऑफ कोर्स कैल्विन विल डू -2, राइट, दिस इज द कैल्विन। कैल्विन प्ले करेगा, he'll do -2, the function's value will become -1, right। फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1। Now after this -1 there are two possibilities, ठीक है, क्योंकि अब हॉब्स की टर्न है, राइट। नाउ हॉब्स टर्न्स इज इट, वो 1 या +1 या -1 कर सकता है। Either he can do +1, it will make it 0, वो +1 करेगा तो if it is doing +1 तो it is becoming 0, ठीक है। हॉब्स कैल्विन जीत जाएगा। एंड इफ he is doing -1 the value will become -2, right, the value will become -2. So see, if it is 0 already, again Kelvin wins, but if it is -2 what will happen, अगर -2 हो गया, अभी कैल्विन की टर्न बाकी है, what will Kelvin do, Kelvin can do -2 और +2, है ना। by basically -2 +2 में नेट फंक्शन की वैल्यू बोल रहा हूँ, not the coefficient of x, right। obviously you can increase the coefficient of x by 1 or -1. अब -2 हो गया, what will Kelvin do, of course to win, he'll do +2 and the value will become 0. so this will ensure again Kelvin wins, ठीक है। तो कैल्विन में ने इस केस में भी इंश्योर कर लिया दैट कैल्विन विंस। नाउ द थर्ड केस, दैट इज इफ द फंक्शन इज 2। यहां पे तो अब सिंपल ही है, कैल्विन क्या करेगा, -2 कर लेगा और रिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ x by 1, तो -2 हो रही है फंक्शन की वैल्यू उससे, तो -2 हो गई यहां पे, तो वैल्यू क्या हो गई, 0। अगेन कैल्विन विंस, है ना। दिस मीन्स कैल्विन विंस। So in all the three cases, जो भी वैल्यू f of 2 की आनी थी, 0 1 या 2, in each of the cases Kelvin can ensure that he wins, and that means the integer roots are there, 0 तक ले आएगा वापस फंक्शन को, राइट। so that means Kelvin always has a winning strategy, वो कम करता रहेगा वैल्यू। it is not possible ना कि हॉब्स वैल्यू को ऑसिलेट कराता रहे, राइट। सो गाइस इसका मेन एक कॉन्सेप्ट यही था, बस इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन वाज अंडरस्टैंडिंग कि हमें f of 2 के बारे में एनालाइज करना चाहिए, because then after actually every move of Hobbes and Kelvin the function is not changing by exactly 1, sorry, the function can change by, it cannot be that ki the function is not changing, right, it is, we can always make sure that the value is actually changing by 1 or 3, ठीक है ना। सो नेगेटिव भी हो सकता था, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू भी दे देते तो हम बढ़ाने की तरफ बात चलते, राइट। सो कैल्विन कैन इंश्योर दैट, है ना। एंड दिस वाज द वन थिंग। सो क्रूशियल पॉइंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर टू थिंग्स। वन थिंग कि f of 2 फाइंड करना चाहिए हमने, ठीक है, उसके बारे में सोचना है। एंड देन वी कैन सी कि कैल्विन की कोएफिशिएंट कम या इंक्रीज करने से एक्चुअली फंक्शन में 2 का चेंज आता है, राइट। द फंक्शन एक्चुअली चेंजेस बाय 2 व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ f of 2, इट चेंजेस बाय 2 अमाउंट ऑफ 2 each time you increase or decrease the coefficient of x by 1, ठीक है, because it's affecting the coefficient of x। तो एंड x को आप 2 डाल रहे हो तो उसके कारण 2 into जो नंबर हो रहा है
कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है आप उसको 1 या -1 से चेंज कर सकते हो, तो इन टोटल नेट फंक्शन की वैल्यू +2 या -2 हो पा रही है, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन. आप देख सकते हो एज सच इसके अंदर कोई फॉर्मूलाज, कोई मैथ्स, वैसे वाला मैथ्स नहीं है. इट्स ऑल दैट यू हैव टू थिंक अबाउट कि हाउ टू मेक इंश्योर कि f(2) 0 आ जाए. कोई और इंटीजर को भी उठा सकते थे, बट f(2) would have been easy because then you can change it by 1 also, है ना? Calvin can ensure that, है ना? And then there's a flow chart or you can say branching of the steps. In the last step 0 1 2 जब केस आ गया, and prove that Calvin will surely win from there. एंड वहां तक तो वो पक्का ले ही आएगा क्योंकि फंक्शन को वो हमेशा -3 और -1 करके कम कर सकता है, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट? सो आई होप गाइस सबको मजा आया इस क्वेश्चन को समझ के, है ना? एंड यू गाइस एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आई होप यू डिड, right? And if you did, please like this video and subscribe to our channel so that you get constant videos like this, right? Regular videos like this. Okay. All right, guys. We'll see you in the next video, and we'll come back with the 5th question of INMO 2014. Right? Till then, keep practicing and all the best, guys. Take care. Bye bye.